Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, student. In previous lab, we have seen an introduction to ADS in which we learn how we can model microwave transmission lines and grounded coplanar waveguide in ADS, how we can match their impedance and how we can make a setup to run the simulation. In today's lab, we will design a product. We will do a simulation of an RF amplifier provided with our microwave equipment. So the objectives of this lab is to understand the theory and operational principle of RF amplifier, understand design process of RF amplifier, understand characteristics of RF amplifier through experiment. We will do just design process of RF amplifier here. So the basic theory is this, that you have usually gone through or you have worked with the low frequency amplifiers whose function is to amplify the small signals, the amplitude of the signal. But here super high frequency amplifier is typically active circuit to amplify amplitude of signal like an amplifier for low frequency signal and is composed of BJT or FET, which is also available at high frequencies. Basic concepts and consideration in design and manufacturing of super high frequency amplifier are reviewed below. Shows a typical single stage amplifier including input-output matching circuits. Here is the source which gives you the input signal. Then you have an input matching network. From input matching network you will get the reflection coefficient of input. Then we have here an amplifier circuit which requires some DC biasing. The amplifier circuits output the signal giving us return loss and output reflection coefficient. At the other end of output we have a output matching network which matches impedance for the load. Then we have a load. So this is a typical block diagram of a single stage amplifier. In short, basic concept of high frequency amplifiers to design matching input output of transistors for high frequency having S frequency characteristic at specific DC bias point with source impedance and load impedance. Input output matching circuit is essential to reduce the unwanted reflection of signals to improve efficiency of transmission from source to load. Some specification indicating characteristics of amplifier are given below. Gain or flatness gain, operating frequency in bandwidth, output power in dBm, power supply requirement, input and output reflection coefficient, VSWR and noise figure in dB. इससे पहले कि जितनी हमने लैब्स की हैं हमने उसमें एक ADS का इंट्रोडक्शन देखा कि ADS के अंदर हम कैसे चीज़ों को लेके आते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी मैचिंग करते हैं. तो आज हम RF एम्पलीफायर पे बात करेंगे. ये RF एम्पलीफायर हमारे साथ इक्विपमेंट के साथ आया हुआ है. इसको फिजिकली भी लैब में पड़ा हुआ है, हम लोग इसको देख सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं. मगर सबसे पहले इसको एम्पलीफायर का जो डिज़ाइन प्रोसीजर है पहले उसको हम सीखेंगे कि कैसे ये ADS के अंदर हम इस RF एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं. अब RF एम्पलीफायर और सिंपल एम्पलीफायर में फ़र्क ये है कि जो सिंपल एम्पलीफायर्स आप लोगों ने देखे वो लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं जिससे पहले जिस पे आप काम कर चुके हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में. तो RF एम्पलीफायर ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं. ऑल्दो इनके लिए भी आपके पास FETs या BJTs आते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं.
मगर वो स्पेशल आपके पास एफईटीज होंगे, जिस तरह आज हम एक यूज करेंगे ERA5SM के नाम से। तो नीचे जो आपके पास फिगर है, ये एक टिपिकली एम्पलीफायर डिजाइनिंग की है, जिसमें सोर्स होगा, सोर्स से आपको सिग्नल मिल रहा है, आगे इनपुट मैचिंग सर्किट होगा जो सोर्स और इस सर्किट के बीच, इस एम्पलीफायर सर्किट के बीच की मैचिंग करेगा, ताकि आपके पास मैक्सिमम सिग्नल रिसीव हो और स्कैटरिंग कम से कम हो, इंसर्शन लॉस आपके पास कम से कम हो। तो ये इंसर्शन लॉस आपके पास कम से कम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सिग्नल अंदर आ रहा है, ये सिग्नल आपके पास किसी एफईटी से या किसी एम्पलीफायर सर्किट से गुजरेगा। इसी तरह फिर आपके पास जो आउटपुट पे सिग्नल आ रहा है उसका कोई रिटर्न लॉस होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट आउटपुट होगा, और इस एम्पलीफायर को डीसी बायसिंग की भी ज़रूरत होगी कि डीसी बायसिंग, डीसी वोल्टेजेस हम देते हैं नॉर्मली एम्पलीफायर को उसके ऑपरेटिंग रीजन में लाने के लिए। इसी तरह फिर आउटपुट पे मैचिंग सर्किट लगा हुआ है, ताकि लोड की और इस सर्किट की इम्पीडेंस मैचिंग सही तरह से हो सके। In short, basic concept of high frequency is matching input output of transistor for high frequency S। तो ये जो बीच में एम्पलीफायर लगा हुआ है ये इस S फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इसीलिए ये रिटर्न लॉस इनपुट ऑफ S एंड रिटर्न लॉस आ रहा है, और नीचे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इनपुट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट आ रहा है। इन मैचिंग नेटवर्क्स हमें ज़रूर लगाने पड़ते हैं ताकि आपके पास एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उस पर आपके पास स्कैटरिंग कम से कम हो, ताकि आपके पास मैक्सिमम सिग्नल की स्ट्रेंथ मिल सके हमें। तो जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं किसी भी एम्पलीफायर के, आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि किसी भी एम्पलीफायर की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो गेन से स्टार्ट होती हैं। गेन और गेन फ्लैटनेस, ठीक है, एक स्पेसिफिकेशन ये होगी। दूसरी, जब आरएफ एम्पलीफायर का नाम आएगा तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ भी आएगी। आउटपुट पावर, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ताकि आपके पास VSWR निकाली जा सके, और नॉइस फिगर आ रही होती है। तो ये मेरे पास मजीद एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये सोर्स आ रहा है, ये लोड आ रहा है, बीच में मैचिंग नेटवर्क है, ये पी इन पी एल मैचिंग नेटवर्क है, और मैचिंग नेटवर्क के बगैर आपके पास ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। मैचिंग नेटवर्क के बगैर हम लोग देखते हैं कि कैसी कर्व्स आती हैं, फिर मैचिंग सर्किट्स लगा के देखते हैं। पावर गेन के फॉर्मूला आपके पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइडेड बाय पावर सप्लाई टू द एम्पलीफायर, ठीक है। पावर गेन का फॉर्मूला है, ट्रांसड्यूसर पावर गेन है। इसी तरह बायस सर्किट की पावर गेन है, इनके फॉर्मूले गिवन है। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास है कि के जो है अनकंडीशनली स्टेबल और पोटेंशियली स्टेबल। तो ये डेल्टा लेस देन 1, के ग्रेटर देन 1, तो अनकंडीशनली स्टेबल। और पोटेंशियली स्टेबल के लिए डेल्टा और के दोनों ग्रेटर देन 1, या के और डेल्टा दोनों लेस देन 1 होने चाहिए। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और इसी तरह ये डेल्टा फैक्टर ट्रायंगल का फॉर्मूला नीचे ये लिखा हुआ है। डिसीजन बाय स्टेबिलिटी सर्किट को अगर हम देखें तो आप स्टेबिलिटी सर्किट से कैसे डिसीजन ले सकते हैं। मैचिंग कंडीशंस है, रिफ्लेक्शन इन इसके बराबर है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट सिग्नल आपके पास इसके बराबर है। ये S11, ये स्कैटरिंग पैरामीटर्स हैं, S11, S12, S21, S22। इन कर्व्स को हम प्लॉट करके देखेंगे। तो अब हम डिज़ाइन प्रोसेस की तरफ आते हैं। हमारे पास जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी रेंज है कि 2.2 से 2.7 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में ये काम करेगा। इसकी गेन एट 2.45 15 dB और मोर रिक्वायर्ड है। 15 dB या इससे ज़्यादा की रिक्वायर्ड है, ठीक है। कम से कम 15 dB होनी चाहिए। और इनपुट आउटपुट लॉस जो रिटर्न लॉस आपके पास है वो 10 dB या इससे ज़्यादा होना चाहिए एट 2.45,
तो हम जो यूज करेंगे ERA5SM, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि ERA5SM हमारे पास क्या है। हम जाते हैं एडीएस की तरफ, ठीक है। सबस्ट्रेट डेफिनेशन, सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट ऐड करते हैं एडीएस में। हम ये प्रोजेक्ट में इंसर्ट, उसी तरह प्रोजेक्ट डिफाइन हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर आप दिखाएं, इंसर्ट सर्किट डिजाइन, यहाँ से नन करते हैं, ठीक। इधर डेटा में आके ऐड सबस्ट्रेट डेफिनेशन में आए, तो अगर मैं मैनुअल पे आऊँ तो मेरे पास ये माइक्रोस्ट्रिप सबस्ट्रेट टाइप है, ठीक है। सबस्ट्रेट टाइप जो है वो माइक्रोस्ट्रिप है, सबस्ट्रेट का नाम आ जाता है R04003C, R04003C, ठीक है। H20 है, MIL है, तो H जो है उसको 20 MIL करते हैं। ER जो है वो मेरे पास 3.38 है। ER जो है ये 3 कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसके साथ यूनिट कोई भी नहीं होगा। और टेंजेंशियल लॉस जो है इज 0.0021 है, तो 0.0021 अगेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। 500 अगर आप देना चाहे तो 500 mm दे सकते हैं इसको। या अब मटेरियल पे स्पेसिफाई बाय मटेरियल रेजिस्टिविटी आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपर को देखेंगे, कॉपर सिस्टम लाइब्रेरी, इसको ओके करें तो ये आपके पास कॉपर आ गया। इसकी रेजिस्टिविटी बाय डिफॉल्ट आ गई है। तो थिकनेस हम यहाँ से देख लेते हैं, 0.669 MIL चाहिए, 0.669, और यूनिट में मेरे पास फिर MIL आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 0.669 MIL सबस्ट्रेट ऐड करके सबस्ट्रेट बना लिया, ठीक है। ओके कर दें इसको। यहाँ पे देखें तो ये सबस्ट्रेट की डेफिनेशन में ये सबस्ट्रेट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं जरा बड़ा कर लूँ, ठीक है। सबस्ट्रेट ऐड कर लिया। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हम लोग एन डिवाइसेस या एन पोर्ट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सर्किट है जो हमने बनाना है, फिर इसको सिमुलेट करके कर्व्स वगैरह देखनी है। तो अब एन डिवाइसेस, जब भी कोई ऐसी डिवाइस जो हमें बाय डिफॉल्ट एडीएस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम उसके लिए ये एन डिवाइस को यूज करते हैं। मैं ये ऐड एन पोर्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ एन पोर्ट डेटा आ रहा है, नेम आ रहा है। नेम में मैं इसको ERA5SM का नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ERA5SM दे के ओके करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे ये प्लेस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये डिवाइस आ रही है। अच्छा, अब ये ERA5SM है क्या, अगर हम अपने मैनुअल के बिल्कुल आखिर में आ जाए, ठीक है, तो ये एक ERA5SM की डेटा शीट आपको दी हुई है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है, इस मिनिमम गेन फ्लैट, ये एक सॉरी, ये बेसिकली एक ERA5SM एक आप कह लें एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल छोटा सा एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। बेसिकली ये एम्पलीफायर
करेगा आपके सर्किट को, ठीक है। डेजिग्नेटेड परमानेंट डैमेज में अकर इफ दीज लिमिट्स आर एक्सीडेड फॉर एम्पलीफायर सिलेक्शन, फॉर गाइड है, फॉर सरफेस माउंटेड है। तो जैसे आपके पास आपने LM351 देखा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा हुआ है, तो इसी तरह ये ERA5SM भी एक एम्पलीफायर है, मगर ये फॉर हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्लास ABCD क्लासेस आ रही है, मटेरियल आ रहा है, टिन लेड प्लेट्स हैं, मार्किंग कैसे ये कटिंग हुई है, डायरेक्शन, पैकिंग, ये सारी डिटेल इसकी डेटा शीट में आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद ये मेरे पास एक S पैरामीटर्स की एक फाइल है, S11 इनपुट रिटर्न लॉस, S21 पावर गेन, S12 आइसोलेशन आउटपुट और S22 आउटपुट रिटर्न लॉस। इनपुट रिटर्न लॉस या इंसर्शन लॉस आपके पास S11 है, ठीक है। S12 आपके पास जो इंसर्शन लॉस से सिग्नल स्कैटरिंग जाया होने के बाद जो आपके पास सर्किट में इन करेगी पावर, उसको आप आइसोलेशन आउट इन कहते हैं। उसके बाद आउटपुट पोर्ट पे आपको आउटपुट रिटर्न लॉस मिलता है, जो वो पावर जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है सर्किट की तरफ, और S21 आपको आउटपुट पे पावर गेन मिल रही है। S11 और S22 लॉसेज है। S21 और S12 आपके पास बेसिकली जो जो आउटपुट आ रही है वो, और जो इनपुट जा रही है सर्किट में आपको वो मिल रही है। तो ये एक S पैरामीटर की एक फाइल है। यही फाइल मेरे पास यहाँ पे मैंने रखी हुई है। ये फाइल हमें मिल जाती है, ERA5SM की स्कैटरिंग पैरामीटर की फाइल है S2P। अगर इसको मैं ओपन करूं नोटपैड के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये फाइल है, ठीक है। मिनिएचर सर्किट लैब, ये कमेंट हुए हैं MHZ, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये S11, S12, S21 और S22 ये पैरामीटर्स के वन है, ठीक है। ये 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 800 मेगाहर्ट्ज तक के अंदर ऑपरेट करता है। यह फाइल हम यूज करेंगे इन एंड डिवाइसेस को डिफाइन करने के लिए। अब वापस आते हैं इसी ERA5SM के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ERA5SM है, इस पे जब हमने डबल क्लिक किया था तो हमें कुछ इस तरह, जब हमने इसको इंसर्ट किया था तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिला था। मैं अगेन इसकी इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। ये ERA5SM डेटा के ऑप्शन के सामने क्लिक किया, अब ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे इंटर डेटा इन स्प्रेडशीट, इंपोर्ट डेटा और लिंक इन फाइल, तो हमने डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसी तरह ये फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये मैं आप लोगों के उसमें टीम्स में अपलोड कर दूंगा, आपको वहां पे ये मिल जाएगी। ERA5SM.S2P ओपन करके ओके कर दें तो आपके पास अब ये डेटा इसके अंदर आ गया। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा आ गया कि नहीं आ गया? जनरल सिंपल, यहाँ पे अगर मैं नहीं ERA5SM पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पे पोर्ट इम्पीडेंस आ रही है, DC बिहेवियर, नॉइस डेटा, नेटवर्क डेटा, ये नेटवर्क डेटा में अगर आऊँ तो मेरे पास ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2, S पैरामीटर पोर्ट 1, S पैरामीटर ऑफ पोर्ट 2, ये 4 लेग्स हैं होती हैं इसकी, तो 2 पोर्ट्स हैं। इन 2 पोर्ट्स पे आप देख रहे हैं कि 8 मेगाहर्ट्ज तक का डेटा आपके पास आ रहा है। सॉरी 800 है तो 8 गीगाहर्ट्ज तक का, 100 मेगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज तक का डेटा हमारे पास ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने इस फाइल से डिफाइन किया ERA2.SM से। ओके कर दें। अब ये तो हमारे पास
आ गया। अगर मैं अब इस कंप्लीट सर्किट के ऊपर जाऊँ, मैनुअल में शायद इतना क्लियर नहीं है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये रखा हुआ है। तो मुझे ये सर्किट बनाना है। अब ये इनपुट मैचिंग नेटवर्क है, ठीक है। ये वाला 56 पिको और ये वाला आपके पास आउटपुट मैचिंग नेटवर्क है और ये डीसी बायसिंग हुई हुई है। ये डीसी बायसिंग है, ये आपके पास आउटपुट मैचिंग नेटवर्क है। जो ये 56 पिको ऑफ फैरेड का कैपेसिटर यूज हुआ हुआ है, ये स्पेशल कैपेसिटर्स हैं, ये नॉर्मल कैपेसिटर्स नहीं है। ये कैपेसिटर्स हैं केमेट की लाइब्रेरी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर हम इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह जो ये इंडक्टर है ये कॉइलक्राफ्ट का, ठीक है। इंडक्टर आप देखेंगे, इंडक्टर आपको मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। इंडक्टर जो है वो कॉइलक्राफ्ट का, और जो अगेन ऊपर रेजिस्टर यूज हुआ हुआ है वो डेल CRCW का। ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 ओम नहीं है, ये 1 ओम है और ये डेल CRCW का 7 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो इसमें जितने भी कैपेसिटर यूज हुए हैं वो केमेट के हैं, इंडक्टर कॉइलक्राफ्ट का और डेल का आपको ये रेजिस्टर मिलेगा। ये नॉर्मली अगर आप इधर कंपोनेंट्स के अंदर जाएं तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा टूल्स के अंदर आके हमें कॉन्फ़िगर लाइब्रेरी में जाना। कॉन्फ़िगर लाइब्रेरी में ये मेरे पास सारी लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट पड़ी हुई है। इनमें से कुछ हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती हैं, बेसिक कंपोनेंट ऐड होते हैं, और कुछ हमें बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं ताकि प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा ना बने। तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटर पे आते हैं। कैपेसिटर में मुझे केमेट के ये सारे पड़े हुए हैं कैपेसिटर। तो केमेट का कैपेसिटर है, ठीक है। इंडक्टर जो है वो कॉइलक्राफ्ट का, ये कॉइलक्राफ्ट पे मैंने क्लिक करके इधर किया तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगर्ड लाइब्रेरीज के अंदर आ गया कॉइलक्राफ्ट का। और इसी तरह रेजिस्टर जो है वो मेरे पास डेल का है, तो डेल को मैंने इधर ऐड कर दिया। तो ये 3 लाइब्रेरीज मैंने कॉन्फ़िगर्ड लाइब्रेरीज के अंदर जाके 3 लाइब्रेरीज को मैंने ऐड किया। जैसे ही मैं इनको ऐड करके रहूंगा तो मेरे पास आप देखेंगे सर्किट एलिमेंट के अलावा ये वेंडर एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर से जाते हैं। कैपेसिटर में केमेट का जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं वो 0805 अंडरस्कोर COG अंडरस्कोर 100 वोल्ट वाला। अगर आप ये देखें केमेट 0805 ये है, ठीक है। केमेट 0805 अंडरस्कोर COG अंडरस्कोर 100 वोल्ट लैब वाला। तो ये 0805 100 वोल्ट लैब वाला मैंने कैपेसिटर उठाया और मैंने इधर लगा दिया। अच्छा, इससे पहले हमें वो इनपुट पोर्ट ऐड करनी है, ठीक है। इनपुट पोर्ट के साथ ये कैपेसिटर लगेगा। तो पोर्ट मुझे सिंपल माइक्रोवेव पोर्ट नहीं है, आज इनपुट पोर्ट है, ठीक है। ये मैंने इनपुट पोर्ट ऐड कर दी इसके साथ। अब ये जो मेरे पास है ये इस पर डबल क्लिक करें तो ये आप देख रहे हो अभी ये C0805 C109 C1GAC लिखा हुआ है, जबकि हमने जो यूज करना है वो C0805 C220 J1GAC यूज करना है। तो हम यहाँ चूज मॉडल के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि बाय डिफॉल्ट ये मेरे ख्याल 22 माइक्रोफैरड में आता है 0805 ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 22 पिकोफैरड में आएगा, ठीक है। 5% है C0805 C220 J1GAC। तो C0805 220 J1GAC आ रहा, ओके करें तो ये आपके पास C0805 220 J1GAC लिखा हुआ आ गया। अब वैल्यूज हमें जो चूज करनी है वो है 56 पिकोफैरड। तो 22 पिकोफैरड की जगह मैं यहाँ पे 56 पिकोफैरड को करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास C0805
220J1 GSC का 56 पिकोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है। अगर सर्किट में जाऊं, ये कैपेसिटर आगे एक ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी फिजिकल लेंथ 15 mm है और विड्थ जो है वो 1.15393 mm है। तो ये ऑलरेडी मैच्ड है 2.45 के ऊपर, तो मुझे वो मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इन वैल्यूज को यूज करूंगा। उसी तरह मैं जाऊंगा इधर माइक्रोस्ट्रिप पे, ट्रांसमिशन लाइन माइक्रोस्ट्रिप पे आके मुझे ट्रांसमिशन लाइन में फिर मुझे फिजिकल लेंथ, इलेक्ट्रिकल लेंथ आ रहा है, सॉरी ये ऊपर पड़ा फिजिकल लेंथ मर्ज लेयर, तो ये मुझे एक ये मैंने माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन लगा दी है। अब इसकी डब्ल्यू और पी की वैल्यूज हम देख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करके ये ओपन हो गया, तो मुझे इसकी डब्ल्यू 1.15393 mm 1.15393 mm ही है, और पी की 1.15393 1.15393 और पी जो है वो मेरे पास 15 mm है। तो पी जो है मेरे पास वो 15 mm है। ये वैल्यूज इंसर्ट करके मैंने ओके किया, तो मेरे पास वही 1.15393 और 15 mm लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने कैपेसिटर लगा लिया केमेट का, उसके बाद मैंने 1.15393 mm और 15 mm की जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो लगा लिया। उसके बाद मेरे पास ये ERA5SM है, ERA5SM को कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक हो गया। ERA5SM को कनेक्ट करने के बाद अब हम आगे जाते हैं। ERA5SM के बाद दोबारा ट्रांसमिशन लाइन है 1.15393 वेट्स वो ही है, मगर इसकी फिजिकल लेंथ 2 mm है। तो मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल V करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसकी P जो है वो मैं 2 mm कर देता हूँ, ठीक है। फिजिकल लेंथ मेरे पास इसकी 2 mm हो गई है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ये T लगी हुई है, ये माइक्रोस्ट्रिप T है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन माइक्रोस्ट्रिप के अंदर आप देख रहे हैं ये आपके पास सारे माइक्रोस्ट्रिप आ रहे हैं। तो यहाँ जनरल कंपोनेंट्स हैं, जनरल कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास ये T आ रही है। इसमें से जो हमें ये T सिलेक्ट करनी है, तो दो टीम्स हैं, रेफरेंस प्लेन एट सेंटर और रेफरेंस प्लेन एट एजेस। तो हमें ये दूसरी जो रेफरेंस प्लेन एट एजेस है ये वाली T उठानी है, ठीक है। उसी तरह मर्ज लेयर करके हमें यहाँ पे ये लगा दिया। अब इसको कंट्रोल R से हम रोटेट कर सकते हैं। ये 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें और ये जो है W1 और W2 W3 ये सारी 10 MIL है, 10 10 10 यहाँ पे MIL कर दें, MIL और MIL ओके कर दें। तो ये सारी 10 10 10 MIL की वैल्यूज आपने रखनी है। उसके बाद मैंने इस T को इधर कनेक्ट कर दिया जैसे कि हमें गिवन सर्किट में है, ठीक है। ये 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 अगर आपको लग रहा है कि 1 उधर होना चाहिए तो इसको हम राइट क्लिक करके फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये 1 2 इधर आ गया, 3 उधर आ गया, ठीक है। ये सारी 10 10 10 MIL हम लोगों ने इसकी W की वैल्यू या विड्थ की वैल्यू दे दी है। अब इसके बाद T के दो एंड्स हैं। इन T के दो एंड्स पे हम देखेंगे कि एक तरफ फिजिकल ट्रांसमिशन लाइन है, ये 15 mm वाली 56 पिकोफैरेड वाला, और वो आ रहा है। तो ये सारा
मैं इसको कॉपी करके अगेन यहाँ पेस्ट मर्ज लेयर करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एक तरफ मेरे पास ये लग रही है, ठीक है, दूसरे एंड पे मेरे पास कैपेसिटर आ रहा है। थोड़ा सा इतना डिस्टेंस हो कि बस जो वैल्यूज हैं वो क्लियरली आपके पास पढ़ी जा सके। और ये आउटपुट पोर्ट मैंने लगा दी, तो ये सेकंड पोर्ट मेरे पास लग गई है। तो जो ये वाला पोर्शन है 1.1539356 आउटपुट 1.1539356 पिकोफैरेड आउटपुट, ये वाला ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे ऊपर जो थर्ड पोर्ट पे हमें टी की कनेक्ट करनी है, हम उस पे देखते हैं। ये 18 नैनो हेनरी का 18 नैनो हेनरी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वाइल क्राफ्ट का 18 नैनो हेनरी का इंडक्टर है। तो उसी तरह वेंडर्स के अंदर जाएं। अब मेरे ख्याल में हमें सर्किट एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, वेंडर की ही चाहिए। तो मैं यहाँ से इंडक्टर के अंदर गया, कॉइल क्राफ्ट के अंदर गया। अब कॉइल क्राफ्ट के अंदर अगेन मेरे पास काफी सारी लाइब्रेरीज हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर से जो हमने यूज करनी है वो 0805CS यूज करनी है। कॉइल क्राफ्ट 0805CS, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कॉइल क्राफ्ट 0805CS, इसको मैंने उठाया, मर्ज लेयर किया और यहाँ पे ले आया। अगेन मैं कंट्रोल R से इसको रोटेट करके ये मैंने इंडक्टर को टी के सेंड पे लगा दिया। अब 0805CS तो आ गया। अब अगेन मॉडल जो है वो और इंडक्टेंस की वैल्यूज वो हम लोगों को सिलेक्ट करनी है। इस चूज मॉडल पे आएंगे। मॉडल जो हमें यूज करना है वो है 0805_180XKBC 180XKBC। तो यहाँ से जरा अगर मैं नीचे 180XKBC नीचे होगा, ये XKBC आ गया। 121 151 181 है कि 180 है, एक मिनट 180 है, 180XKBCL नहीं, लाइब्रेरी गलत है, मेरे ख्याल आ गया 00805 180 CS है ना, 0805 CS 308 05 CS है, 180XKBC नहीं, ठीक है, 180 080 है, XJBC ये आ रहा है, ठीक है, अंडरस्कोर 180XKBC बाय डिफॉल्ट 18 नैनो हेनरी का आता है। ये वैल्यूज तो हम चेंज कर L0805_180XKBC ये वाला हमने यूज करना है और 18 नैनो हेनरीज को देनी है। तो बाय डिफॉल्ट ये 18 नैनो हेनरी में आता है, तो ओके कर दें। तो ये 18 नैनो हेनरी का हम लोगों ने इंडक्टर डिफाइन कर दिया। इंडक्टर के बाद आगे मुझे यही केमेट के ही कैपेसिटर्स हैं, सेम कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स चाहिए, ठीक है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है डीसी बायसिंग के लिए। तो मैं वही कैपेसिटर्स को कॉपी कर रहा हूँ। मैं ये कैपेसिटर एक लगा दिया मैंने, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, मुझे 3 कैपेसिटर्स लगाने हैं, ठीक है, 1000 पिकोफैरेड और 1,
तो ये मैंने एक कॉपी ये दूसरा लगा दिया और मर्ज ले, और ये मैंने तीसरा लगा दिया। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि कनेक्शन इजीली हो जाए। अब इसमें जो नीचे वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये मैंने 1 2 3 22,000 और 1 माइक्रोफैरेड है, तो वही J1 GAC है। ठीक है, तो डबल क्लिक किया 22 पिकोफैरेड, तो यहाँ पे वैल्यूज में 22 पिकोफैरेड लिख दिया। ठीक है, दूसरा जो है मेरे पास वो 1000 पिकोफैरेड है, 3 जीरो है, 1000 पिकोफैरेड है, 1 1 2 3 1000 पिकोफैरेड आ गया। और तीसरा जो है वो मेरे पास 1 माइक्रोफैरेड है, तो ये 1 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड आ गया। अब ये जो G1 JAC, इस पे अगर मैं क्लिक करके डिलीट करूंगा तो ये मेरे पास ऊपर से इसका लेबल भी डिलीट हो जाता है। इस लेबल को मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ जैसे कि उसमें हुआ। अब इस पूरे को मैं इस तरह से करीब लाके जोड़ सकते हैं। तो ये लेबल का इशू कोई नहीं है कि उसमें आप कहें कि लेबल है और इसमें लेबल नहीं है। लेबल आप डिलीट भी कर सकते हैं, और मैं हर एक चीज़ को आपको फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। तो ये 3 कैपेसिटर्स हम लोगों ने लगा लिए हैं, 22,000 पिकोफैरेड और 100 पिकोफैरेड का। ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर ये 18 नैनो हेनरी से कनेक्टेड है। तो पहले इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं वायर टूल के थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब इसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब अगर आप इनको जिस तरह उधर मैनुअल में है वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो इसको मैं अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम ऊपर नीचे ला सकते हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है कि इधर है तो इधर ही रहेगा। ये चीज मैंने, ठीक है। अब इससे ऊपर देखते हैं, ये 1 ओम का डेल का रेजिस्टर है। ठीक है, तो मैं इसी तरह रेजिस्टर में गया, वेंडर के अंदर, डेल के अंदर गया। अब डेल के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे रेजिस्टर हैं। तो डेल का जो रेजिस्टर हमने यूज़ करना है वो है CRW08051 के 9R1 के TC200। ठीक है, यही मेरे ख्याल में ये सामने आ रहा है 0805 है। डेल में मैं इधर आ रहा हूँ, 0805 आ रहा है। ठीक है, 0805 के अंदर 1K है, 0805 के ये 1K आ रहा है। ठीक है, 9R1 के TC200 डॉट लिब, तो ये वाला हमारे पास। ठीक है, TC200 डॉट लिब, इसको मैं फुल खोल लूँ, 1K 9R फिर ये ऊपर वाला 9 TC200 9 दोबारा देख लें, इसको मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, CRCW08 ये 0805
ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये वेंडर्स के कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आखिर में आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 0805 के अंदर आ रहे हैं हम लोग। 0805 1K 9R 1K है, तो 0805 मेरे पास ये आ रहा है 1K 9R 1K, ये आ रही है, ठीक है। 1K 9R 1K TC200 डॉट लिब, तो ये वाली हमें उठा के पहले इधर ले आए ताकि आपको ये डबल क्लिक करके ऊपर से यहाँ से CRC W05 ये नीचे ऊपर मॉडल है, नीचे देख लें CR0805 1K 9R 1K TC200 डॉट लिब, तो यही वाले TC200 डॉट लिब है। अब इसमें जो मुझे मॉडल चाहिए वो ये वाला मॉडल चाहिए। एक तो मैं इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख दूंगा तो भी ये आ जाएगा, ठीक है, और चूज मॉडल में जाऊंगा तो भी मुझे ये यहाँ पे मिल जाएगा। जो मुझे मॉडल चाहिए वो है CRC W08051001, तो 08051001J 1001J, ओके, ठीक है। 08051001J में ये आपके पास मुख्तलिफ 0805 100 101 1201, या तो मुझे 1001 वाला चाहिए था, ओके किया, और ये 1 किलो ओम की जगह मुझे 1 ओहम करना है, ठीक है, तो ये 1 किलो ओम की जगह 1 ओहम आ गया। 01J1 ओके कर दिया, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ कंट्रोल R से और मैं इस नोड पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इस नोड पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह जैसे गिवन सर्किट में उसके बाद 0.1 माइक्रोफैरेड का मेरे पास कंट्रोल C कर लें, कंट्रोल C, यही कैपेसिटर है और 0.1 माइक्रोफैरेड है, तो 0.1 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक है, ये 0.1 माइक्रोफैरेड का हो गया। अब इसको इसी तरह कनेक्ट कर लें, एक एंड इसका इधर आ गया, एक एंड इसका इधर आ गया, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट अब जो सर्किट गिवन था वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सोर्स कनेक्ट करना है 7 वोल्ट का, जिसको सोर्स के लिए मुझे सर्किट एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। सर्किट एलिमेंट्स में आपके पास यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, माइक्रोस्ट्रिप लम्प्ड है, लम्प्ड के अंदर आप देख लें जनरल कंपोनेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे सोर्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह आइडियली माइक्रोवेव, आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपको इधर मिलेंगे, तो सोर्स भी हमें यहीं से ही मिलेगा, ठीक है। सब सर्किट्स में है सोर्सेज, ये नज़र आ रहा होगा आपको ये सोर्सेज, ठीक है। तो ये सर्किट एलिमेंट के अंदर में सोर्सेज में आ गया। सोर्सेज में अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, आइडियली कंट्रोल्ड है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर अगर आप जाएं तो ये वोल्टेज सोर्स आ रहा है, ये वोल्टेज सोर्स में लेके यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब जो सर्किट है उसमें देखें प्लस इधर कनेक्टेड है, माइनस ग्राउंड है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको, तो ये प्लस माइनस इसको कंट्रोल आप से रोटेट करते हैं, या इसको राइट क्लिक करके रोटेट कर लें, तो ये आ गया, ठीक है।
प्लस इधर कनेक्टेड है, माइनस उधर है, और जो वैल्यू है ये 7 वोल्ट की है। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे 7 मिली वोल्ट से वोल्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। तो ये 7 वोल्ट का सोर्स आ गया। उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड को यहाँ से ऊपर से हमने उठा के इसको भी रोटेट कर लेते हैं, कंट्रोल आर से रोटेट हो जाता है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड कर दिया। 7 वोल्ट को ग्राउंड कर दिया, और ग्राउंड से एक जो वायर है वो इधर, ये जो वायर है ये हम लोगों ने इधर कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास अब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे पास वही कंप्लीट सर्किट है जो हमें मैनुअल में दिया हुआ है, या ये वही उसी आरएफ एम्पलीफायर का सर्किट है जो हमारे पास गिवन लैब इक्विपमेंट के साथ आया हुआ है ERA5SM से। ये सर्किट अब मैंने कंप्लीटली बना लिया। इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यूज क्लियर नहीं है, इसलिए आपके लिए मैंने ये फिर PDF के अंदर इसको बनाया हुआ है। इसमें वैल्यूज आपके पास क्लियर है, ये मैं आप लोगों को साथ दे दूंगा उसमें। क्लोज करंट टीम्स के अंदर अपलोड कर दूंगा इसको साथ। इसके बाद हमें एनालिसिस सेटअप डिफाइन करना है। ठीक है, तो एनालिसिस सेटअप डिफाइन करने के लिए हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2.2 से 2.7 गीगाहर्ट्ज के बीच में रखनी है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा ये है अगर लीनियर स्टेप है 1 to 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज हमने देखनी है। ठीक है, ये देख लें रिजल्ट जो गिवन है उसमें 1 to 4 गीगाहर्ट्ज के और 0.05 गीगाहर्ट्ज का स्टेप है। तो इसी तरह जाते हैं अपने सर्किट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस में ऐड सॉल्यूशन सेटअप, नेटवर्क एनालिसिस एंड लीनियर नेटवर्क एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन है। यहाँ पे अगेन इसको एडिट कर लें। यहाँ पे 1 से 5 नहीं 4 गीगाहर्ट्ज है और 0.05 गीगाहर्ट्ज का स्टेप है, इसको ऐड कर लें। ओके करें, फिनिश कर दें। एनालिसिस डिफाइन करने के बाद इसको एनालाइज कर लें। तो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमारे पास कंप्लीट। अब हमने रिजल्ट्स को देखना। रिजल्ट्स में स्मिथ टूल स्टेबिलिटी हम स्मिथ टूल से वेरीफाई कर सकते हैं कि एनालिसिस है। इसको देखते हैं। पहले हम रिपोर्ट से जनरेट करते हैं S11, S22 और S21 को देखते हैं। S11, S22 और S21 को। तो क्रिएट रिपोर्ट पे जाएं, स्टैंडर्ड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके करें। तो S11 जो रिजल्ट्स हैं वो S11 को ऐड ट्रेस करें। ठीक है, S21 और S22। अब S11 जो इंसर्शन लॉस है, S22 रिटर्न लॉस है, S22 रिटर्न लॉस है, और S21 जो है वो मेरे पास गेन है। तो जैसे ही मैं डन करूंगा तो मेरे पास ये उसी तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं जिस तरह के मैनुअल में शो है। ठीक है, तो अब S11, S21 और S22 इनको अगर आपने मार्क डेटा को मार्क करना है, जैसे इधर मार्क है, तो 2.45 पे अगर आप देखेंगे, ये मैं बता देता हूँ, लाइन है 2.45 के ऊपर मेरे पास ये सारी रीडिंग्स आ रही हैं। तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मार्क ऑल ट्रेसेस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक लाइन आ रही है। अब इस लाइन को अगर आप मूव करेंगे, ठीक है, तो ये भी 2.65 के ऊपर है, 2.85,
2.6 2.45 आ रहा है, ठीक है। 2.45 के ऊपर हमने इसकी वैल्यूज देखनी है, ठीक है। 2.45 -22 12 और 17 -22 -12 और 17 ये ऊपर S11 और S21 ऊपर नीचे हो गए, बाकी वही। तो रीडिंग्स मेरे पास ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। अब रिटर्न लॉस अगर मैं स्पेक्स पे ऊपर जाऊं, ठीक है। गेन इनपुट रिटर्न लॉस मेरे पास 22.48 है, आउटपुट 12.45 है और गेन 17.16 की आ रही है, ठीक है। सेम यही रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। और जो हमें रिक्वायर्ड थी वो गेन थी 15 dB या और मोर, और इनपुट आउटपुट रिटर्न लॉस 10 dB और मोर होना चाहिए था, यानी 10 dB से लॉसेस 10 dB से ज्यादा होने चाहिए थे लॉसेस जो है वो मेरे पास 22 और 12.45 आ रहा है। गेन 15 dB और मोर चाहिए थी, तो मेरे पास गेन 17.16 dB आ रही है, ठीक है। तो ये 17.16 मुझे S21 गेन है, S22 रिटर्न लॉस है और S11 आपके पास इंसर्शन लॉस है। तो ये रेड वाली लाइन आपके पास गेन है, बाकी ये इंसर्शन लॉस है और ये रिटर्न लॉस है। तो 2.45 के ऊपर ये आपके पास आ रही है, ऑल्दो 2.45 के ऊपर हमारे पास जो रीडिंग्स है वो ठीक आ रही है। अगर आप इसमें बेस्ट रिजल्ट देखें तो 2.85 के ऊपर आपके पास आ रही है, ठीक है, जिसपे आपको गेन जो है वो 32 के आसपास मिल रही है और जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये कर्व हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनसे मैच कर रही है। अगर हम इसकी पीसीबी लेआउट देखें, अगेन मैं सर्किट 1 पे क्लिक करूं, ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखी थी। ये लेआउट आ रही है, इसको अपने पोर्ट कंट्रोल सिलेक्ट ऑल करके उसी तरह एडिट में मेरे ख्याल में कि ड्रॉ के अंदर है लाइन माइक्रोवेव पोर्ट, तो ये पोर्ट से लाइन हो रही है। और अगर आपने इसका 3D में देखना तो 3D में हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ये पोर्ट 1 है, ये ERF5SM के साथ आगे बाइसिंग वगैरह हो रही है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला आप लोगों को तो कैंपस के अंदर भी आके इन चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। और इसको अगर आप लाइन करना चाहते हैं तो आप वो मैंने आपको बताया हुआ कि हम चीज़ों को लाइन भी कर सकते हैं। ये अब इस तरह से आई हुई है। आप पोर्ट 1 के ऊपर ये स्ट्रिप लाइन है, ये बीच में टी वगैरह है, इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि बीच में ये टी आ रही है, ठीक है। टी के दो एंड्स आएंगे आपके पास, ये सारी चीज़ें इस तरह से मिल जाएंगी। अगर आप इसकी लेआउट को ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी, वो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। इनपुट आउटपुट पोर्ट आपस में लाइंड हो जाती हैं, तो इस वजह से ये सही आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। फिर खैर हम स्कीमेटिक की तरफ जाते हैं जो हमने बनाई है। अच्छा, इसके बाद अब हमने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना था स्मिथ टूल से। अगर मैं सर्किट के ऊपर जाऊं,
तो ये डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ और ये सारी व्यू डीसी बाइसिंग क्रिएट रिपोर्ट्स एक्यूमुलेटर रिपोर्ट्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, टूल्स के ऊपर जाएं, स्कीमेटिक के ऊपर आ जाएं, ड्रॉ। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखो तो ये TRL ट्रांसमिशन लाइन के नीचे सर्किट के अंदर आपको स्मिथ टूल नज़र आ रहा है। इस स्मिथ टूल के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास इम्पीडेंस, एडमिटेंस, पोलर ये डिस्प्ले हो रहे हैं और ये मैचिंग सर्किट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मैचिंग है, NW1 है, 2.45 के ऊपर मेरे ख्याल आपको ये मैच करना है, 2.45 तो ओके करें। ओहो, स्मिथ टूल तो ये 2.45 के ऊपर आप ये कर्व देख रहे हैं जो नज़र आ रही है ऊपर। अगर मैं स्मिथ टूल के ऊपर जाऊं तो ये आपको ये इस तरह से दो कर्व्स नज़र आ रही हैं। VSWR2 है, QMP, RX ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं ये इम्पीडेंस के ऊपर मैच कर रहे हैं हम लोग। ये नीचे फ्रीक्वेंसीज और सर्किट एनालिसिस है 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। इसी तरह ये तो मेरे पास आ रही है जो मैचिंग आ रहा है। अब ये यहाँ इम्पीडेंस में आ रहा हूँ 1 गीगाहर्ट्ज़ की जगह में यहाँ पे अगेन 2.45 गीगाहर्ट्ज़ को NW1 ओके करें। हाँ स्मिथ टूल और यहाँ से ये पावर गेन है, एस प्लेन, एल प्लेन, स्टेबिलिटी के एस प्लेन या एल प्लेन, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मुझे देखना है, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की मुझे चाहिए। तो ये आपके पास ये रेड 2.45 आ रही है। ठीक है, एस प्लेन में, एल प्लेन में देखना है तो ये अप्लाई करेंगे। ये एल प्लेन की आ रही है आपके पास, ये एल प्लेन की दो कर्व्स आ रही हैं। इसी तरह हम लोगों को नॉइस देखना है, नॉइस के लिए अप्लाई करेंगे तो नॉइस की फिगर हमारे पास आ रही है। ठीक है, नॉइस के अलावा इसी तरह रिफ्लेक्शन देखनी है एस सोर्स पे और लोड पे। ये एस और एल सोर्स और लोड है। ठीक है, तो पावर गेन सोर्स पे, लोड पे, अवेलेबल गेन सोर्स पे, लोड पे, स्टेबिलिटी हम लोगों ने एस और एल पे देखी है। तो स्टेबिलिटी में हमारे पास ये ग्रीन और ये रेड दो कर्व्स आ रही हैं। अब इनके ऊपर आप देख लें, मेरे पास VSWR वगैरह जो रिक्वायर्ड जो इंटरसेक्शन जो होगी वो मेरे पास आ रही है। तो इस तरह से हम ये स्मिथ टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास दरमियान में ये छोटा सा जो कर्व है, बेसिकली ये मैचिंग का जो रिजल्ट आता है हमारे पास ये वो है। ठीक है, यहाँ पे वो मैचिंग का रिजल्ट नहीं गिवन, यहाँ पे जस्ट ऊपर स्मिथ टूल में KCL और KCS, स्टेबिलिटी एट सोर्स और स्टेबिलिटी एट लोड, तो ये दो का आपके पास बने हैं। तो ये KCS और KCL आपके पास आ रहे हैं। ये इस पैरामीटर को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर दिया। नॉइस की जगह यहाँ पे मेरे पास अगेन स्टेबिलिटी, ये KCS आ गया। ठीक है, और ये KCL, ये KCL आ गया। ये थोड़ा सा वो कह रहे हैं, कह रहा है इसको फिट ऑल
ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये अब आ रहा है, वो बेसिकली वो स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा आउट हो रहा है। तो ये आपके पास देख रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है ये आ रही है, ये इंटरसेक्शन आपके पास ये 190 और 180 के बीच में ये जो इंटरसेक्शन आ रहे हैं पॉइंट, ये हम देखें तो ये 100 एंड उसके बीच में आ रहे हैं। तो आज की लैब में यही चीज़ें हम लोगों ने देखनी थी, आरएफ एम्पलीफायर के ऊपर हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आरएफ एम्पलीफायर की हमने डिज़ाइनिंग पे बात की है कि आरएफ एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, कि कैसे डिज़ाइन किया है हमने। एक जो हमारे इक्विपमेंट के साथ आया हुआ था उसका डिज़ाइन प्रोसीजर देखा है कि वो कैसे डिज़ाइन हुआ है। उसमें ERA5SM एम्पलीफायर यूज़ हुआ है, उसकी एस पैरामीटर की फाइल कैसे हमने एक्सपोर्ट की है। हमने मुख्तलिफ जो वेंडर्स की इक्विपमेंट है, केमेट है, क्वालक्राफ्ट है, डेल है, उनको यूज़ करते हुए हमने ये पूरा सर्किट बनाया। उसके बाद इसको 1 to 4 गीगाहर्ट्ज़ पे सिमुलेट किया, रिजल्ट्स मैच किए हैं और फिर है। तो अब ये नीचे रिपोर्ट्स हैं। बेस वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज तो हम नहीं कर सकते। S11 की कर्व यहाँ बनानी है, S22 की कर्व यहाँ बनानी है। ठीक है, ये प्रिंट लेके इस पे हाथ से बनाने हैं। S11 की कर्व यहाँ पे, S21 की यहाँ पे आ जाएगी, S12 की कर्व यहाँ पे आ जाएगी। जो ऊपर हमें एक रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपने प्लॉट करने हैं और ये रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है। बाकी डिज़ाइन प्रोसीजर ये आपको पता है, हैंड रिटन है, आप लोगों ने वो हैंड रिटन करना है। हैंड रिटन में आप लोगों ने ये जो शुरू में जो थेरी है वो वहां से शुरू नहीं करना। आप लोगों ने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दे देना है कि हमारे पास स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है। ठीक है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लेस देन 1। तो स्टेबिलिटी फैक्टर और डेल्टा आ रहा है आपके पास। ये मैंने आपको भी उससे दिखा भी दिया। इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल और आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल ये हमने प्लॉट किए कि ये अनस्टेबल है और यहाँ पे ये स्टेबिलिटी की कंडीशंस आ रही हैं। ये स्मिथ टूल से जाके हम लोगों ने ये दोनों सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, मैचिंग कंडीशंस और यहाँ से फिर कि हमारे पास डिज़ाइन प्रोसेस जहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे पास गिवन स्पेक्स क्या थी, हम लोगों ने ERA5SM की क्या पैरामीटर्स किए, और ये जो सारा प्रोसेस है ये तो बहुत शॉर्ट है। आप लोगों ने इसको लिखना है कि ये मैंने माइक्रो स्ट्रिप लाइन इस वैल्यू की इंसर्ट की है, मैंने केमेट का कैपेसिटर लगाया है इस मॉडल का, इस लाइब्रेरी का, इसी तरह कॉइल क्राफ्ट रेल, ये सारे डिटेल में प्रोसेस स्टेप्स लिखने हैं। आपने ये शॉर्ट नहीं लिखने हैं, इसमें बहुत शॉर्ट है, आपने इतना शॉर्ट नहीं लिखना। बाकी ये रिजल्ट्स अटैच करने हैं कि जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, एंड दैट्स इट। तो आज की लैब के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी सिमुलेशन लाजमन कीजिएगा, वीडियो को एंड तक गो थ्रू करें ताकि आपको A to Z हर चीज़ क्लियर हो। थोड़ी सी अब चीज़ें मुश्किल होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह वो हम क्वेरी क्वेश्चन आंसर के सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।